ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیاسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس مز پوڑ اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن دِژ ترغیب امہ کتھ ہز کہ تہ پزو اللہ تبارک و تعالیٰ سند شکر بجا انن یم اللہ تبارک و تعالیٰ ہن تہند خاطر یم احکام کھولت اور واضح کر بیان کر. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سندی کرم نوازی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کر انسانن ہدایت وتہ ہم تہ یس زن نشاندہی اور ضلالت یس زن وتھ تمچ تہ نشاندہی تاکہ ساری انسان ہکن شرح صدر سان ہدایت کہ وت پہ گامزن گھت. آز یس زن آیت یم زن بی کہن احکامن پہ مشتمل. مے کور تہ گۄڈنیُک دۄہ تہ عرض کہ صورت النساء یُس زن اتھ مز معاشرتی مسائل آمت بیان کرنے یعنی تم مسائل یمو سۭتۍ زن سون معاشرٕ یُس زن سہ ہیٚکہِ بہترین جاے روزنہٕ خٲطرٕ بنِتھ. تَتھ منٛز پوٚر اَسہِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کوٚر گۄڈنیٚتھٕے معاشرٕ سُدھارنہٕ خٲطرٕ یہِ حُکم نٲزِل کہ تمام دُنہِکۍ لُکھ یِم زن یِم چھِ برابر. یہ ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے. یہ سبھی برابر ہے الا بالتقوی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کسی کو یہ فوقیت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. تم پتہ آئی معاشرچ تم برائی تمن ہند بیان کرنے یم زن تم ساتنس معاشرس مز آس سارے کھت زیادہ عروجس پہ یعنی خواتین کے ساتھ ظلم روا رکھا جاتا تھا. تہند حقوق آئے بیان کرنے اور ان کو وراثت سے بے دخل کیا جاتا تھا. اس لیے وراثت کے بھی احکام بیان کیے گئے تاکہ معاشر یس زن خواتین پہ نصب معاشر مشتمل جب ان کے حقوق بحال ہوں گے تو قدرتی طور پر ہمارا سارا معاشرہ جو ہے بہرحال یہ انصاف اور یہ عدل کی جگہ بنے گی. آج تہ معاشر ڈنج تھاؤنہ خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کی نئی احکام دتمت. تم احکام کیا انشاءاللہ المستعان آج ہم انہی کا مطالعہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماؤن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقوں سے یا ظلم کر کے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ہاں درست صورت یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین ہو یا آپس میں تجارت ہو. ولا تقتلوا انفسکم اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تبارک و تعالی نہایت مہربان ہے. یہ آئے مبارک لفظی ترجم. بہرحال امچ ترجمانی یا امچ مختصر تفسیر تھا بہ تہ برونٹ کن. ات آئے مبارکہ مجھ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان مخاطب کرت یہ تاکیدی حکم کرن کہ اخ ایک سن مال یس زن اس کو ظلم کر کے اس کو باطل طریقوں سے مت کھاؤ. یا دمن لفظن مز ونو
ات آئے मुबारक किस गोडनिकिस फिक्रस मज हलाल रिज़्क़ुक आमुत एहतमाम करनुक ताकीद करना, क्योंकि जो भी माल जुल्म के जरिए, जो भी माल बातिल तरीकों से कमाया जाएगा, बहरहाल वो तो क्या होगा, हराम होगा। अस पे पात कुनत वरासत अहकाम, तो आम तौर पर वरासत में क्या होता था कि वरसा जो है, जो ज्यादा ताकतवर होता था या जो ज्यादा इख्तियार वाला था, वो दूसरे वरसा का माल जुल्मन खा जाता था, या वो दूसरे वारिसों को बहरहाल युजन तमन थावन युजन खराब हिस्सा या जो उनका युजन खराब माल वो उनको देता था, खुद अच्छा माल हड़प कर जाता था। उस पर भी इस आयत का इतलाक होता है कि ए ईमान वालों, एक सुन माल जिसमें वरासत का माल भी आता है, ये जुल्मन मत खाया करो, यानी जुल्म करित, गसब करित या बातिल तरीकों माल खवन क्या। हाँ, अलबत्ता इस आयत में एक तरह से माल को खाने का उसकी तरगीब दी गई है, वो है बाहमी रजामंदी से अगर तिजारत हो, यानी तिजारत गो बाय और शराकत अगर वो बाहमी रजामंदी से हो तो उस तरह से माल का एक दूसरे का खाना बहरहाल ये जायज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलू अम्वालकुम, अपने माल या एक दूसरे का माल, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम, अपने माल ये वो बातिल तरीकों से मत खाओ। बहरहाल बातिल तरीके क्या क्या है, बातिल तरीकों में वो तमाम तरीके आएंगे जो कुरान और हदीस ने हराम कर दिए हैं। आप मुझे तमाम तरीके युवन तुम कौन कौन सा तरीका, इसमें एक तो यही आएगा कि किसी का माल जुल्म करके खाएंगे, ये बातिल तरीका। इसी तरह से सूद के जरिए से अगर हम माल खाएंगे, ये भी बातिल तरीका है, अगरचे इसमें दोनों फरीकों की बाहमी रजामंदी है, अगरचे आप मुझे दशवनी फरीकन हिज बाहमी रजामंदी, लेकिन फिर भी ये असल में रजामंदी नहीं है, बल्कि एक इदारा दूसरे शख्स या दूसरे फरीक की मजबूरी का फायदा उठाता है। अगरचे सुच कंसेंट दिवन, मगर असल में ये दिल्ली उसकी ख्वाहिश नहीं होती है, बल्कि वो मजबूरन रजामंदी का इजहार करता है। इसीलिए सूद भी किस में आता है, ये माल हराम तरीको क्यों। इसी तरह से अगर वनो यम शरीयतन दितमिच चोरी करके अगर कोई किसी का माल खाएगा, यह भी हराम में दाखिल है। इसी तरह से लॉटरी हिंदिस तरीकस मज जो लॉटरी या यमजन सट्टेबाजी यवन करने या जुआ होता है, ये तमाम चीजें इस बातिल में आती हैं जिसकी ममानियत कुरान और हदीस में आई है। गो अल्लाह तबारक व तआला फरमान, ए ईमान वालो, माल मा बातिल तरीको खवन के। बातिल तरीकों में मैंने कहा कि कौन कौन बातिल तरीका है, चोरी के जरिए से, गसब करके, जुल्म करके, रुश्वत देकर भी, ये भी किसी का माल क्या है, को बातिल तरीको क्यों। कोई इंसान किसी को रुश्वत देता है, बाज़ाहिर इसमें दोनों फरीकों की रजामंदी है, मगर असल में यह रजामंदी हकीकी रजामंदी नहीं है, क्योंकि जो रुश्वत देता है वो मजबूर होकर अपना काम निकालने के लिए उसे ये पैसा खिलाता है या उसे अपना माल देता है। गो यितछन रजामंदी के, ये भी किस में दाखिल होगा, एक दूसरे का माल बातिल तरीकों से खाना। इसलिए आओ यमन तमाम तरीकन मुतलिक रसूल अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि ए ईमान वालों, आख माल मखियो बातिल तरीकों के। हाँ, यहाँ पर कुरान ने कहा है ला ताकुलू अम्वालकुम, अपना माल बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे के दरमियान बातिल तरीकों से मत खाओ। ये क्या वरना अपना माल, अपना माल क्या है, मतलब है कि एक दूसरे का माल जो आप खाते हो ये असल में आपका ही माल है। क्यों? क्योंकि अगर माशरे में ये रिवाज पाएगा कि आखे बीसन माल ब्याखे बीसन माल, तो कुदरती तौर पर आपका माल भी कोई गसब कर लेगा। इसीलिए कहा गया कि अपना माल बातिल तरीकों से मत खाओ। अच्छा, इस हराम खोरी की कितनी ममानियत है, यानी बातिल तरीको माल खुन या युजन शरीयत के बरखिलाफ यमजन तरीक तुमो तरीको माल खुन, बहरहाल ये कितना जुर्म है और इस पर कितना गुनाह होगा। बहरहाल फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि
हराम माल से जो पला हुआ जिस्म है, यानी सु जिस्म युस जन कम हराम माल से पलोमुत, तो उसके लिए नार ही सबसे ज्यादा मुनासिब है। तथ जिस्मस खतर ज्यादा मुनासिब कुस, जहन्नम की आग ही, अगर वो कितना भी आबिद हो, अगर से खबर कोता आबिद ते आस। अच्छा, दूसरी बात आप याद रखिए, युस जन ये कांसुद माल बातिल तरीको खोन ये हुकूकुल इबाद में आता है। ये कत मज हुकूकुल इबाद। अब हुकूकुल्लाह के बारे में तो यह है कि अल्लाह चाहे तो उसको माफी कर सकता है अपनी गफारी की या अपनी रहमत की, अगर चादर उस बंदे पर युजन डाल दे। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला यह है कि ये तब तक माफ नहीं होंगे जब तक कि बंदे इसको खुद माफ न कर दे। अब खास तौर पर इसमें आप ये बात भी याद रखें, खास तौर पर रुश्वत के मामले में या सूद के मामले में ये इतना बड़ा गुनाह है बातिल तरीके से माल खाने का कि इसकी माफी या इसकी भरपाई करना ये भी एक इंसान के बस में नहीं है। अल्लाह बचाए, का मुलाजिम या का क्लर्क वो रुश्वत लेता है लोगों से, अब 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या रिटायरमेंट के बाद अब इसको एहसास होता है कि मैंने गलती की। अब बताइए किन किन लोगों से ये माफी फिरता ये चलेगा या किन किन से ये माफ करवाएगा। तो ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफी भी बहरहाल ये माफ करना इंतहाई दुश्वार। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी सजा भी इस दूसरी आयत में आप देखेंगे कितनी बुरी सजा इसके लिए है। अच्छा, ये तमाम तरीके इसी तरह आप याद रखिए, लॉटरी लॉटरी भी इसी बिल बातिल में आता है, हराम माल में आता है। लॉटरी हिज टिकट क्या अगर कोई कहेगा ये भी तो रजामंदी से होता है, यानी लॉटरी कनन वोल लॉटरी कनन और हम अपनी रजामंदी से इसको बेचते हैं, मगर ये रजामंदी नहीं है, क्योंकि जो लॉटरी खरीदता है उसके दिल में क्या गुमान होता है कि शायद मेरे जरिए से या इस लॉटरी के जरिए से मैं बहुत सारे माल का मालिक बन जाऊंगा, मगर किसी मेहनत के बगैर। तो इसको भी हराम किया है शरीयत ने। और ब्याह का थजे याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ज फरीक पानवई तिजारत करें, यानी एक कोई सामान बेचता है दूसरा खरीदता है, इसे कहते हैं बायो शराकत, यानी बाई माने बेचना, शराकत माने फिर इसको इश्तराक करना, लेना। अगर इसमें भी बाहमी रजामंदी न हो तो ये माल या ये बाई या ये तिजारत भी हराम है, इसको भी इस बातिल में लाया जाता है। मिसाल के तौर पर उलमा ने कहा है, एक शख्स वो अपना कोई सामान वो 50 रुपए में बेचता है, अमिस मार्केट प्राइस चीजस कोता 50, कह खरीदारा गो अमिस नल, यह दपान ना 40 रुपयन दे 40 रुपयन दे, हुश कारण कसम कि मुझे इस बात पर बराबरी नहीं, मगर ये इतना इसके पीछे पड़ता है कि दुकानदार चलो पानी जान छुड़ाने के लिए ही अब मैं इसको 40 रुपए में ही बेचता हूं, तो जो माल इसने खरीदा ये भी आएगा वला ताकुलु अमवालकुम बिल बातिल, इसने भी बातिल तरीके से इस माल को ये सुकोरेम क्या हासिल। तो जो ये बेच खरीदने वाला है इसने इस दुकानदार का माल गस्ब करके या बातिल तरीके से अपने लिए हासिल किया, तो ये भी गस्ब में ही आएगा और ये भी बातिल तरीकों से ही माल को ये क्या हासिल करना होगा। अच्छा, दूसरी बात याद रखिए, ये साथ बाई शराकत कारण, यानी जब हम तिजारत करते हैं, किस चीज को तिजारत करते हैं, शरीयत ने इसकी भी वजाहत की है। हर वो तिजारत, हर वो लेन देन जिसमें बेचने वाला और खरीदने वाला मजलिस में ही इस मजलिस में ही बैठे बैठे ही इस बाई को वापस भी कर सकते हैं, उसे तिजारत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है, उससे हमने 100 रुपए की कोई चीज ली, वो दुकानदार ये खरीदार हाथस रुपये, तो कोई पान में बिल्कुल रजामंदी भी है, मगर अभी वो दुकानदार ये खरीदने वाला अभी दुकान पर ही है, मजलिस में ही है, ये कहता है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मैं ये सौदा वापस ले करना चाहता हूं, हुदीना में पहुंच। तो अगर ये बाहमी रजामंदी से इसको वापस पैसे करता है तो इसको कहेंगे तिजारत। आज क्या, अगर इसी मजलिस में ये दुकानदार इसको पैसे वापस देने से इनकार करता है, ये तिजारत नहीं बनेगी, यही लॉटरी हो गई। इस पर लॉटरी मुझ क्या करना, हम टिकट निकालते हैं, बाहमी रजामंदी दोनों की है। अब अगर लॉटरी से 24 रुपये बोरमुत और 10 रुपये चीज या 10 रुपये चीज, बताओ आप क्या करते हैं, तो क्या ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। अगर आप उसको चाहो ये लॉटरी की टिकट वापस देना और उसे कहो कि मुझे अपने 2000 रुपए वापस दे दो, क्या वो आपको 2000 रुपए वापस देगा? नहीं। सुबह लॉटरी रूल यह है। तो इस वजह से एक ही महफिल में आपने उसको ये चीज वापस करने का आपको इख्तियार
तो ये शरीयत की नजर में या फुकहा ने इसको तिजारत में नहीं गर्दाना है। इसी वजह से लॉटरी या यजन से सट्टेबाजी आज वन तस कैसिनो जार गिन, ये सब जुआ पांसे जो है ये सब हराम है इस शरीयत की निगाह में। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो एक दूसरे का माल आपस में बातिल तरीकों से मत खाओ। बहरहाल बातिल तरीके मैंने कहे कौन कौन है। बातिल तरीके में जुआ आता है, बातिल तरीके में ये एक तो जुआ आता है, दूसरा सूद का पैसा आता है, दूसरा लॉटरी आती है। इसी तरह से किसी पर गसब करना, रुश्वत का माल, या किसी दुकानदार से या किसी खरीदने वाले से माल उसकी मर्जी के बगैर कम कीमत देकर देना, यह भी क्या है, यह भी गसब है। इसी तरह अगर दुकानदार कोई चीज एक ग्राहक की मजबूरी की वजह से उसे ज्यादा कीमत में देता है, तो जो माल उसने उस ग्राहक से वसूल किया उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर यह भी आएगा बातिल में, ये खतरा हलाल किया। अच्छा ये तो हो गई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारा। हाँ, सही सूरत अल्लाह तबारक इल्ला यह कि अन तकून तिजारतन अन तराज़ी मिनकुम, कि आप एक दूसरे के दरमियान या आप लोग आपस में तिजारत करो, मगर कौन सी तिजारत, तराज़ी मिनकुम, जिस पर आप दोनों राजी हों। यानी ये नहीं कि दुकानदार आशने सौदास पर राजी या खरीदार दुकान सौदास पर राजी किहन, तो इसको भी हराम किया है शरीयत ने, जो मैंने बताया कि दुकानदार की मर्जी के बगैर कोई तकन गसन काउंटरस पे 1/2 रुपये त्रा 5 चालन है ना, बस युत में, लेकिन वो राजी ही नहीं है, तो ये भी दूसरे का माल बातिल तरीके से लूटना हो गया। या दुकानदार इस ग्राहक की मजबूरी से फायदा उठाकर दुगनी कीमत या ज्यादा कीमत मार्केट वैल्यू से लेता है, यह भी हो गया कि बिल बातिल ये की यासक माल हासिल के जरिए बातिल तरीकों से। अल्लाह ताला फरमान लेकिन एक तरीका है एक दूसरे के माल को हासिल करने का जो कि जायज तरीका है, वो कौन सा है, इल्ला अन तकून तिजारतन, कि आप लोग बाहमी मर्जी के साथ एक दूसरे की रजामंदी के साथ तिजारत करो। इस तरह से आप एक दूसरे का माल हलाल कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। मगर सवाल पैदा होता है कि एम आयत फिक्र तरन कि एक सुन माल हासिल करने खातिर जायज तरीक सिर्फ कुछ योतन तिजारत ही योतन, लेकिन यह इसका सही मफहूम नहीं है, बल्कि यह तो इसका जाहिरी मफहूम है। इसीलिए कुरान को समझने के लिए हमें हदीसों की भी जरूरत पड़ती है और फुकहा की भी जरूरत पड़ती है। फुकहा वनन कि इस आयत में तिजारत का इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि 80 से 90% का माल जो एक दूसरे का हलाल होता है वो किस वजह से होता है, वो तिजारत के ही उसूलों से होता है। हत्ता कि मुलाजमत इज्जत वो भी तिजारत के ही उसूल पर असल में होता है कि एक एनजीओ एक इदारा वो एक मुलाजिम से ये एग्रीमेंट करता है कि आप अपनी सलाहियतें हमें दीजिए, उन सलाहियतों के बदले में हम आपसे इतनी तनख्वाह देंगे। ये चाक एग्रीमेंट ये भी किसके उसूल पर असल में चलता है, तिजारत के ही उसूल पर चलता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर खास तौर पर किसका जिक्र किया, तिजारत का जिक्र किया। वरना तिजारत के बगैर भी एक दूसरे का माल हासिल करना जायज तरीकों से वो जायज है। मिसाल के तौर पर कोई किसी को हिब्बा करता है कोई चीज गिफ्ट या तो एक चीज जो हमने हिब्बा की वो एक का माल दूसरे के पास पहुंच गया, ये भी क्या है, ये भी जायज है। अगर चीज तिजारत में जीवन किया, मगर यहां पर आयत में तिजारत का जिक्र मखसूस तरीके से या खास तौर पर इसलिए किया गया क्योंकि अक्सर माल एक दूसरे का हलाल किसकी वजह से होता है, वरना तिजारत के अलावा भी एक का माल दूसरे के लिए हलाल हो सकता है। कौन कौन जायज तरीके हैं, एक तो मैंने कहा हिब्बा करना यानी गिफ्ट दून कंस, तो अगर गिफ्ट बुझम कंस रपी लाख या तमिस दिम तो गिफ्ट का चीज, तो वो चीज उसके लिए हलाल है। इसी तरह सदका की वजह से अगर कोई अपना माल किसी को देगा तो जो वो सदका पकड़ने वाला है वो भी उसके लिए क्या होगा, हाँ। अलबत्ता अगर कोई सदके के नाम पर आता है हमसे सदका वसूल करता है मगर वो सदके का मुस्तहिक नहीं है, तो वो भी उसमें आता है कि उसने बातिल तरीके से दूसरे का माल, और कयामत के रोज उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। जिमजन अनऑथेंटिक वैन फेरन, अनऑथेंटिक गदागर फेरन, ये भी आता है इसमें कि वो एक शख्स का माल बातिल तरीके से हड़प करते हैं। अच्छा, यह वो हिब्बा जायज तरीका है,
तिजारत जायज तरीका है, सदका यह ये भी क्या है, जायज तरीका है। यम सारी तरीक अत मज आम जायज करार दिन। अल्लाह ताला फरमान वला तक़्तुलू अन या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ए ईमान वालो, एक दूसरे का माल आपस में बातिल तरीकों से मत खाओ, इल्ला अन तकुना तिजारतन। हाँ, अलबत्ता जायज सूरत यह है कि आप एक दूसरे का माल खा सकते हो, किसके जरिए से, तिजारत के जरिए से इस्तेमाल कर सकते हो, मगर कब, अन तराजिम मिनकुम, अगर दोनों फरीक राजी हूं। अगर राजी ना हो तो वह तिजारत नहीं बनेगी। यही फर्क तिजारत और सूद में है। सूद बाड़न पोस, मगर इसमें इसलिए हराम किया है अल्लाह तबारक व तआला इसको, क्योंकि उसमें दोनों फरीकों की रजामंदी, अगरचे रजामंदी जाहिरी तौर पर वो दिखाते हैं, मगर हकीकत में युजन सूद देने वाला है उसकी रजामंदी उसमें, वो तो असल में उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे ज्यादा माल लेता है। अच्छा, हदीस में आता है तिजारत कचा फजीलत है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत का खुसूसी जिक्र किया है। फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्निस हदीसस में फरमो बदतरीन जाय बेहतरीन जाय यस दुनियाहस में वो अल्लाह के घर मसाजिद हैं, और बदतरीन जगह जो इस दुनिया में इस कुर्रे अर्ज पर है वो बाजार है। तुम चुको मत, मगर इस बाजार में रहते हुए भी जो शख्स कारोबार करेगा किसके जरिए से, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकाम के मुताबिक, उसके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अत्ताजिर सदूक ये जंच अत्ताजिर सदूक यौमल क़ियामत तहत ज़िल्लिल अर्श, कि जो सादिक ये होगा ताजिर वो कयामत के दिन अर्श के साये के नीचे होगा। सास कयामत दो का तल अर्श के साये तल यम दोनों कहां साये भी आज। और दूसरी हदीस में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अत्ताजिर सादिकुल अमीन, इसमें एक लफ्ज ऐड किया रसूल ने, यानी सादिक ताजिर और अमानतदार ताजिर वो कयामत के दिन कहां होगा, मा सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। सास कयामत दो कमन से मा नबियीना व सिद्दीकीना व शुहदा, वो नबियों के साथ होगा, वो सिद्दीकों के साथ होगा, और किन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। ये तो इतना बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने किनको दिया है, मगर शर्त ये कि ये ताजिर क्या गए आसुन, ये सिद्दीक भी होना चाहिए और ये अमीन भी होना चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक दफा वो अपने बाजार का यम साथ मदीने पाकस में गई तुम, क्योंकि रसूलुल्लाह वक्त के हुक्मरान भी थे, तो यम साथ गश्तस द्राय बाजरस कुन, बहरहाल बाजार में देखते थे अच्छा नरक डंज, अच्छा सही माल युवन कन्न, और अच्छा युवन अत क्या वनन कवा इस्लामी कवानीन मुताबिक युवन बायो शराकत करन। तो जब जा रहे थे तो अख सहाबिया सो कोश कनन, बहरहाल रसूलुल्लाह त्रो पन दस्ती मुबारक अत कोशस मज, बहरहाल कोश ये वुशुक यह अंदर की ओदुर, अंदर ओदुर मगर पेट क्या हो। तो रसूलुल्लाह ने उस वक्त उस सहाबी को डांटते हुए कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो हम में से, यानी ये क्या किया है आपने कि एक किस्म का माल दिखाने के लिए रखा है और अंदर से क्या है दही किस्म माल। अगर आज के मार्केट में जाएंगे फिर तो ये सारा गश ही गश है, तो सोरी क्या सोरी ये तो धोखा ही धोखा है। टमाटर वजल वजल पोप पोप नेबर कुनत, लेकिन पीछे से क्या होती है गंध भरी होती है। और इस पर तुर्रा ये कि खरीदार आसन उसकी मर्जी के बगैर ही उसको ये सारा कुछ लिफाफे में पैक करके दिया जाता है। अब बताइए क्या ये इस्लामी तरीके से यशना सोई वला ताकुलु अमवालकुम बिल बातिल, ये भी तो बातिल तरीकों से माल घसेटना या माल गसब करना होगा। बहरहाल इन सहाबियों को अर्ज या रसूलुल्लाह, असल में तो बात यह है कि रात को बारिश हुई थी, बारिश गमज मे माल नबर कुन, बहरहाल इसकी वजह से ये सारा माल ये भीग गया है। अब जब सुबह सूरज और धूप निकली है ये पेठिम पेठिम ये क्या गो यहाँ हो अंदर रूदी। बहरहाल रसूलुल्लाह ने ताकीदन कहा कि इसको बहरहाल मिला दो, यानी ताकि लुकन लगे पता कि अंदर इसके अंदर क्या है। इतनी ताकीद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसके बारे में की है कि कौन गश्त धोख लगुन, इसीलिए रसूलुल्लाह ने ताकीद ही फरमाया कि एक तो जब आप तिजारत करेंगे कसमें खाने से एहतराज करो, तिकाज फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह युस पनुन माल कसमो जरिए कन अल्लाह तबारक व तआला उस माल से बरकत उठा लेता है। आज पे मार्केट में हताज चौन कसम हमसुद कसम यमसुद कसम यशी साफ माल, ये तो ऐसा माल है इतनी इसकी कीमत है। बहरहाल वो सारे क्या होते हैं
जायज कसम खन एतराज कोर्मुत या अम नश रुकाम जनाब मोहम्मद। अब तो बात ही नहीं है कि अगर कोई झूठी कसमें इस पर खाए। और फरमो रसूलुल्लाह जब आपको माल बेचना हो तो अगर इसमें कोई ऐब है तो इस ऐब को जाहिर करके इस खरीदार को बताओ कि अत चीजस मुझे फलन अत मुझे फलन नुकस। आज का मार्केट अगर हम देखेंगे, आज क्या मुसलमान खारो जलील, ये इस वजह से है कि हमारा मार्केट, हमारी तिजारत, हमारी मईशत, ये सारा इस्लामी उसूलों के बरखिलाफ चल रहा है। ये सारे का खिलाफ बरखिलाफ गसना। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तामानतदार और जो सादिक ताजिर वो कयामत के दिन किन के साथ होगा? नबियों के साथ होगा, सद्दीकों के साथ होगा और शहदा के साथ होगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि ए ईमान वाला आपस में एक दूसरे का माल जो है ये मा खेते बातिल तरीकों के, अगर इसकी जायज सूरत यह है कि आप बाहमी रजामंदी के जरिए से, तिजारत के जरिए से एक दूसरे का माल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये इस आयत का पहला टुकड़ा है। बहरहाल एम पच दयम टुकड़ा वो इसमें भी ज्यादा तफसील तलब छे। इंशाअल्लाह मुस्तान अगर अल्लाह ताला जिंदगानी तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। मगर बहरहाल ये ध्यान थाउन कि हमारी जो माल या हमारा जो युजन क्या सोर्स ऑफ इनकम युजन ये गैस आसन क्या हलाल, क्योंकि हलाल के बगैर कोई भी इबादत कबूल नहीं है। पात कुन पोड़ सूरह बकरा मज कि हलाल रिज़्क़स कचा बरकत और हलाल जो है इसके कितने समरात और इसके कितने फायदे हैं। बल्कि हदीस मज आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शख्स दूर दराज सफर तय कर, उसके बाल परा गंदा, उसके कपड़े गड़द आलूद, और वो जैसे काबा की जन गिलाफ को पकड़कर कहता है या रब, यानी ए अल्लाह मेन दुआ करते क्या वो अपनी हाजात बयान करता। रसूलुल्लाह फरमाओ कैफा युस्तजाबु दावा, अल्लाह उसकी दुआएं कैसे कबूल करेगा जबकि मलबसो हो हराम, उसका पहनना, उसका लिबास भी हराम, व ताम हो हराम, उसका खाना हराम, व शराब हो हराम, और उसका पीना भी क्या है हराम। तो रसूल कैफा युस्तजाबु दुआ, अल्लाह इसकी दुआएं कैसे कबूल करेगा। बाज़ाहिर वुचित सारी यम जन अमिस पैरामीटर्स तुम बराबर। रसूलुल्लाह फरमाओ मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, ये आम सफर कर दूर दराज, अमिस दुआ कैसे कबूल गसन। परागंदा बाल, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह फरमाओ कि खुदायस ब्रोट का यूजर परागंदा बाल और इंतहाई आजिज़ी सान दुआ मंगन, और कौन सा मकाम गिलाफ काबा को पकड़ते हुए। मगर एम्पत फरमो जनाब मोहम्मद रसूल इसकी दुआ कैसे कबूल होगी जबकि इसका लिबास भी हराम, इसका पहनना भी हराम, इसका ये खाना भी हराम, तो कैसे इसकी दुआएं कबूल होंगी। बल्कि हदीस में आमद अगर एक लुकमा हराम का होगा 40 दिन तक इस आदमी की एक भी नमाज कबूल नहीं होती है। इसलिए सारे को ज्यादा एहतमाम गई कमियो हलाल खूरी और हलाल रिज़्क़ को। रब्बुल आलमीन को दुआ कि सुदीन हलाल रिज़्क़ तौफीक वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।